Hello, my dear friends. How are you? Students, today we start third lecture of chemical kinetics. Students, in last two lecture, we studied about different types chemical reactions on the basis of rate and rate of reaction and its types. Students, today we start rate law. Rate law and rate constant. Student, what is this? What is rate law? You know, students, according to law of mass action, according to law of mass action, you discussed already in 11th class. According to law of mass action, rate of reaction is be directly proportional to concentration of reactants at a certain temperature. It means rate of reaction, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional concentration of reactant. It is also called as रेट लो. इसी को हम स्टूडेंट रेट लो कह देते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन A to B, this one reactant and this one product. Students, suppose that concentration of reactant at certain temperature is be Ca. Ca represent concentration of reactants. Student, according to law of mass action, rate of reaction denoted by R or dx upon dt, directly proportional concentration of reactant denoted by Ca. Students, when proportional sign removed, then dx upon dt equal to proportional constant K, Ca. Students, proportional constant K is also called as rate constant or rate coefficient. And student, its specific name is be specific reaction rate. Student, this name is very important. Because in this name no constant word not used. Therefore, it is important. Student, dependency of K, nature of reactants and temperature.
and temperature. Students, for following reaction, small aa plus small bb plus small cc forms product. Then according to law of mass action, according to law of mass action, R equal to dx upon dt equal to k concentration of A power small a into B small b C small c. Students, concentration of all reactants is be same if concentration of all reactants is be same. AA equal to BB equal to CC equal to 1. It means concentration of all reactants is be same. It means unity. Then dx upon dt equal to k. dx upon dt equal to k. dx upon dt equal to k. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, देखिए आप dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट, k हो चुका है. ये k क्या है, k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को. स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन where concentration of all reactant is be unity. स्टूडेंट क्लियर. देखिए हमने आज का जो टॉपिक लिया है उसका नेम क्या है स्टूडेंट, रेट लो एंड रेट कांस्टेंट. स्टूडेंट इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. ये हमारा लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. सपोज दैट ये फॉलोइंग रिएक्शन है जिसमें A2B का फॉर्मेशन हो रहा है. स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, Ca है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं और स्मॉल r किसके इक्वल है, dx अपॉन dt के इक्वल है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Ca के. नो स्टूडेंट प्रोपोर्शनल साइन हम हटाएंगे तो उस कंडीशन में कांस्टेंट आएगा. ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है रेट कांस्टेंट, रेट कोएफिशिएंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होता है. स्टूडेंट्स ये नेम बड़ा फेमस होगा, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. स्टूडेंट जो K होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. स्टूडेंट सपोज दैट एक रिएक्शन और लेते हैं जिसमें मोर देन रिएक्टेंट होते हैं और उनकी स्टोइकियोमेट्री भी प्रेजेंट है. स्मॉल AA प्लस BB प्लस CC से क्या बना रहे हैं बच्चों, P बना रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका स्मॉल r कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, dx अपॉन dt इक्वल टू k, A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b, C की पावर स्मॉल c. स्टूडेंट जितने भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है हम उसको यूनिटी के इक्वल कर लेते हैं, तो हमारे पास dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, k हो जाएगा. मींस स्पेसिफिक रिएक्शन रेट किसके इक्वल है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज बी यूनिटी, टेकन इज बी यूनिटी. क्लियर स्टूडेंट्स. सो दैट राइट डाउन स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक रेट लो एंड रेट कांस्टेंट. Rate low and rate constant, and write down students, according to law of mass action, rate of reaction is be directly proportional to concentration of reactants at certain temperature. Now student write down for following reaction A to B. For following reaction A to B,
Ca is a concentration of reactant. Ca is a concentration of reactants. Now according to law of mass action, R equals to dx upon dt, directly proportional Ca. Next step, dx upon dt equal to Kca. Write down student next line. Here K equal to rest constant, rate coefficient and specific reaction rate. And value of K depends on nature of reactants and temperature. Nature of reactants and temperature. Now student next line. In multi-reactants chemical reaction, small a plus bb plus cc2 forms P. According to law of mass action, R equals to dx upon dt equal to K a to power small a, b to power small b, c to power small c. If small a equal to small bb equal to small cc equal to 1, then dx upon dt equal to k. dx upon dt equals to k. स्टूडेंट्स अब आप यहाँ डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट टॉपिक डाल के लिखना, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज बी इक्वल टू rate of reaction where concentration of all reactants is be taken unity. स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, बिल्कुल लर्न करना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए बच्चों सभी याद रखें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट एनसीईआरटी को फोकस करते हुए ये डेफिनेशन, इसलिए स्टूडेंट सभी बच्चे इस डेफिनेशन को याद रखें. ओके स्टूडेंट्स. अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है. यूनिट्स ले रहे हैं रेट कांस्टेंट की. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, स्मॉल a प्लस स्मॉल bb प्लस स्मॉल cc प्रोडक्ट. इस वाली केमिकल इक्वेशन से हम रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करेंगे. स्टूडेंट इस रिएक्शन के लिए आपने क्या लिखा, R इक्वल्स टू के a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b और c की पावर स्मॉल c. ऐसा स्टूडेंट्स आपने लिखा अभी थोड़ी देर पहले. अगर R इक्वल्स टू दिस वन होता है तो स्टूडेंट्स K इक्वल्स टू क्या होता है, K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R अपॉन A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b, C की पावर स्मॉल c. ऐसा हो जाएगा. स्टूडेंट्स हियर R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है. हियर R क्या बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन. और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है. और स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू टाइम. स्टूडेंट्स मोल की यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है. मोल को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, लीटर से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी. क्लियर बच्चों. अब आपको ये भी पता है कि ये जो स्टेप है ये भी क्या है,
कंसंट्रेशन है, ये भी क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन होती है। इफ स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी सी इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। स्टूडेंट्स हमने ऐसे क्यों लिखा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी? यू नो स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, कंसंट्रेशन है। जब कंसंट्रेशन होगी, जब बेस इक्वल है, तो जो पावर होती है वो सब सम हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इफ स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इक्वल टू एन, एन रख दे। एन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमको फॉर फ्यूचर में इसकी नीड होगी बच्चों, फॉर फ्यूचर में हमको इसकी नीड होगी। आगे बात समझ में आपको? स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिला, देखिए आप देखिए क्या रिजल्ट मिला बच्चों आपको रिजल्ट मिला यहाँ पर कि आपके पास जो K है वो किसके इक्वल है, K किसके इक्वल है, स्मॉल r अपॉन ये है। अब दोनों की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी। ये आ रहा है हमारे पास r इक्वल टू आ रहा है मोल, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप अभी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ऐसे ही लिख दीजिए आप, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। r की वैल्यू को r इक्वल टू क्या लिख दीजिए आप, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख दीजिए। और स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ चुका था, डिवाइड में इसको आप इस पूरे वाले को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल n। आपने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या ले लिया है, n ले लिया है। तो आपके पास अब देखिए बच्चों, जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं होती उसके ऊपर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब आप देखिए यहाँ भी कंसंट्रेशन है, यहाँ भी कंसंट्रेशन है। जब डिवाइड में इस तरीके से कंसंट्रेशन आ जाती है बच्चों, जब डिवाइड में इस तरीके से कंसंट्रेशन आ जाती है, तो जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। देखिए किस तरीके से माइनस होगी, कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगी 1 माइनस n, और टाइम हो जाएगा टाइम इनवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर क्या करिए, कंसंट्रेशन को तो क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस n, और टाइम को क्या लिखते हो बच्चों आप, सेकेंड इनवर्स। तो आपके पास ये K का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हो चुका है बच्चों, K के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। स्टूडेंट्स आप इसमें n के डिफरेंट मान के लिए K की वैल्यू निकाल सकते हैं, इफ n इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 0 रख देते हैं तो स्टूडेंट्स इसको फॉर फ्यूचर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानेंगे, बच्चों इसको। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब होगी स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें वैल्यू n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 का मीन्स तो 1 ही होगा। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसके लिए स्टूडेंट्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट बन जाएगी। इफ n इक्वल टू 0, देन रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ K, व्हाट इज दिस, यूनिट्स ऑफ K, ये K की यूनिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कभी आपको K की यूनिट ये दे रखी हो तो आप समझ जाना कि बात की जा रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। स्टूडेंट्स n इक्वल टू 1 आ जाए कहीं पर, स्टूडेंट n इक्वल टू जैसे 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया। और बच्चों पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 हो जाएगी तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका नाम होगा, और यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, सेकेंड इनवर्स होगी। स्टूडेंट्स इफ n इक्वल टू 2,
अगर स्टूडेंट्स 1 माइनस एन इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ पावर कितनी रह जाएगी, -1 रह जाएगी। अगर -1 रह जाएगी तो स्टूडेंट्स इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो क्यू के की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, के की जो यूनिट प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी, मोल -1 यानी मोल इनवर्स। और जो लीटर है, जो लीटर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, लीटर लीटर रहेगी और सेकंड इनवर्स होगा, यानी कि मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब स्टूडेंट्स आपने n की वैल्यू 0 ले ली, n की वैल्यू 1 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली, ऐसे आप 3 4 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सिंपल मेथड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसको कंप्लीटली स्टूडेंट्स ऐसे कैसे ही नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, इसको आप ऐसे कैसे ही नोट कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। क्लियर है सभी बच्चों का? गुड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। Students, factors affecting rate of reaction. Students, many factors are affected rate of reaction. Some factors are following. Students, names of these factors are first concentration of reactants. Students, second factor is be temperature, effect of temperature. Third point, students, nature of reactants and products. Third point. Student, fourth point, nature, effect of catalyst. Fifth factor, students, surface area of reactant. Students, sixth factor is B. Effect of radiation. Effects of radiations. Students, these are 6 factors affected
rate of reaction. Rate of reaction. First of all, student, concentration of reactant. You know very well, students. According to law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional concentration of reactants. It means when concentration of reactant increased, then increased rate of reaction. Suppose that for following reaction, PCl3 react with Cl2 and forms PCl5. For this reaction, when added more amount of PCl3, then chemical reaction is be going on forward direction. Because more production of PCl5. It means when concentration of reactants increased, then more production of product formation. Okay, students, first concentration of reactant. Second one, students, temperature. How temperature affects the rate of chemical reaction? You know, students, when increased temperature, then increased kinetic energy of reactants, then increased collision between molecules of reactant, then it forms easily product. Therefore we can say that when temperature increased, then increased rate of chemical reaction. And each 10 degrees Celsius or 10 Kelvin temperature increased rate of chemical reaction just 2 to 3 times. It denoted by temperature coefficient. Coefficient equal to K T plus 10 degrees Celsius upon KT equal to 2 to 3 times. स्टूडेंट 2 to 3 टाइम्स क्या इंक्रीज हो रहा है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन में अगर रिलेशन आपको बताना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. The students concentration of reactant and temperature is directly proportional rate of reaction. Now students, nature of reactants and products. You know students, in the chemical reaction, old bond breaks between reactants and new bond forms between products. It means the nature of reactants and product decide rate of chemical reaction. Some chemical reaction rate of reaction is be higher, and some chemical reaction rate of reaction is be lower. If for this example, 2CO plus O2 forms 2CO2. Students, same example, 2NO plus O2 forms 2NO2. In both chemical reaction, students, stoichiometry of both reaction similar in reactant and product, but combining capacity of both reactants is be different. It means rate of reaction for formation of NO2 and oxidation of nitric oxide is be faster than oxidation of carbon monoxide. It means rate of chemical reaction is be higher than for formation of nitrogen dioxide
फॉर्मेशन ऑफ CO2, देन फॉर्मेशन ऑफ CO2। स्टूडेंट्स, इस NO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है वेरी फास्टर हो रहा है, यहाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ग्रेटर है, जबकि यहाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, थोड़ी लोअर है। स्टूडेंट्स, अगर मैं जनरल वे में एक्सप्लेन करूं तो जो केमिकल रिएक्शंस में हम आयनिक रिएक्शंस देखते हैं वो वेरी फास्ट होती है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है। तो स्टूडेंट्स, हम रिएक्शन के बेस पे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर कैसी है उसके बेस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फास्ट स्टेप वाली होगी या ये रिएक्शन स्लो स्टेप वाली होगी। अंडरस्टूड? ओके, चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं आपसे इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट की। इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैटेलिस्ट? स्टूडेंट, कैटेलिस्ट इज आउटर एजेंट एंड catalyst can be changes rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, but after reaction its chemical composition and its mass is be unchanged. Students, in the presence of positive catalyst, suppose that किसी केमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये नेम आया है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज दिस? स्टूडेंट्स, एक मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब ये एनर्जी मिनिमम हो जाए, अगर ये एनर्जी मिनिमम हो जाए तो रिएक्टेंट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस मिनिमम एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज कर दे। तो बच्चों, ये डिक्रीज कौन कर सकता है? ये डिक्रीज कैटेलिस्ट कर सकता है, ये डिक्रीज कैटेलिस्ट कर सकता है। अब ये डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा, इसको हम ग्राफ के बेस पे एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज देट, आप देखिए बच्चों, यहां देखिए, यहां समझिए आप। सपोज देट देखिए बच्चों, ग्राफ के बेस पे समझने का प्रयास करें। ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी और पाथ ऑफ रिएक्शन के बिटवीन है, पाथ ऑफ रिएक्शन के बिटवीन। स्टूडेंट्स, आपसे मैं दो बातें करूंगा। एक तो एब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट में ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये कब ग्राफ है? एब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट। जब आपका कैटेलिस्ट एब्सेंस था स्टूडेंट, जब आपका कैटेलिस्ट एब्सेंस था तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हुआ और इस ग्राफ की जो एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, ये इतनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सपोज दैट दिस वन EA1, इसको EA1 से रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे हमने किसी केमिकल रिएक्शन में हमने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, ऐड कर दिया हमने कैटेलिस्ट ऐड कर दिया। अब जैसे कैटेलिस्ट ऐड किया स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट में क्या हुआ? कैटेलिस्ट, अब बच्चों ये कैटेलिस्ट आपका पॉजिटिव कैटेलिस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव कैटेलिस्ट होना चाहिए। इस पॉजिटिव कैटेलिस्ट ने इस हाईएस्ट पीक जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को इंडिकेट करता था, उसका पीक डिक्रीज हो गया, लोअर हो गया, और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम EA2 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? EA2 से। अब देखिए, इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में EA2 हमको लोअर मिला कंपैरेटिव बिफोर, देयरफॉर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया। नाउ
सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट से क्या मीन्स होता है? स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स हेट्रोजीनस कैटालिसिस प्रोसेस का एक बेसिक फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं या सॉलिड कैटेलिस्ट होते हैं। हम तो सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में लेंगे, ये सॉलिड सब्सटेंस है। अब इससे क्या होता है, कैटेलिस्ट जब अटैच होता है, कैटेलिस्ट जब अटैच होता है तो उस कंडीशंस में उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने इसको ब्रेक कर दिया फाइन पाउडर में, ऐसे फाइन पाउडर बना दिया। इस सॉलिड पार्ट को अपन ने फाइन पाउडर में बना दिया, ऐसे फाइन पाउडर ले लिया। फाइन पाउडर का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एडजॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। Okay students, now effects of radiations. Students, effects of radiations or exposure to light. Students, those reactants exposed to lights, its chemical rate of reaction increased and it forms easily product. But when some reactants react in dark condition, then products will be forms very slow forms, in very slow forms. Students, suppose that H2 plus Cl2 react in dark room, then it forms HCl, but it is a very slow forms. But when H2 and Cl2 exposed to light, UV radiation, then it adsorbed photon of UV radiation, and these reactants are excited and forms explosive substance. It means in the presence of radiations, rate of reaction increased of chemical reaction. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये आपके पास बोर्ड पे मैंने 6 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए एक बार। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टूडेंट, राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक, factors affecting rate of reaction. Write down students in this. The rate of reaction affected by following factors. The rate of reaction affected by following factors. Student, write down first. Concentration of reactants. According to law of mass action, write down in this student. According to law of mass action, rate of reaction is directly proportional. To concentration of reactant. So rate of reaction increases. Rate of reaction increases with increases in the concentration of reactants. But concentration change in zero order reaction does not affect rate of reaction.
For example, student write down for example, if concentration of PCl5 or Cl2 in the reaction, if concentration of PCl3 and Cl2 in this reaction increased, then the rate of reaction also increases. Students, write down this reaction. Clear, students? Now second point, students, temperature, effect of temperature. Now students, write down, when temperature of reaction increases, then kinetic energy of molecule of reactant increases, by which rate of reaction increases. This is suppose that rate of reaction becomes twice twice from normal with the increase of 10 degrees Celsius or 10 Kelvin temperature. Student, next line, the ratio of rate constant of reactions at T degree Celsius and T plus 10 degree Celsius temperature is called temperature coefficient, whose value is approximate 2 to 3. So temperature coefficient equal to KT plus 10 degrees Celsius divided by KT equal to 2 to 3. Okay, students. Now nature of reactant and product. Student, write down in this. In the chemical reaction, old bonds between reactant molecules breaks. Old bond breaks between reactant molecules and new bond forms between product molecules. Generally, when reactant forms product, then its chemical reaction, then its rate of chemical reaction depends in its attracting capacity of reactant molecules. For example, carbon monoxide oxidized in carbon dioxide at slow rate, but a similar reaction in oxidation of nitric oxide. This one name of nitric oxide. Oxidation of nitric oxide into nitrogen oxide would be in fast step. Okay, students. Now next topic, for effect of catalyst. Now student, write down, catalyst is a
outer agent. Catalyst is a outer agent which changes rate of chemical reaction, but its mass and composition will be unchanged after chemical reaction. Write down in student next line. In the presence of positive catalyst, decreased activation energy of reactant, decreased activation energy of the reaction, so that increased rate of reaction of chemical reaction. It means positive catalyst enhances rate of chemical reaction. Student, draw this graph. इस ग्राफ को आप बना लीजिए स्टूडेंट्स. एंड नाउ राइट डाउन नेक्स्ट फिफ्थ, surface area of reactant. Write down in this students, surface area of reactants. This factor is very important. For heterogeneous catalysis. The rate of reaction also increases. Write down student. The rate of reaction also increases with the increase in surface area of a solid reactant. And rate of reaction decreases with decreased surface area of reactant. Now students, next 6 number, effects of radiations or exposure to lights. Write down students in this. The rate of reaction for the reaction taking place in the presence of light, depends upon presence or absence of light. For example, photosynthesis reaction do not take place in dark. Photosynthesis reactions do not take place in dark, but this reaction takes place rapidly in the presence of sunlight. So rate of such reactions increases in the presence of specific radiations. Second example student note कर ले, formation of HCl in dark conditions, then its rate of reaction decreases, but in the presence of ultraviolet radiation, rate of reaction also increases. Write down students both reactions. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बच्चों सभी को?
ये टॉपिक आपको इजी गोइंग में क्लियर हो जाना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, गाइज क्लियर है? गुड। चलिए तो बच्चों, अगले वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स भी साथ के साथ लिखा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा वीडियो जरूर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम।